Hello, Assalamu alaikum, participants. Please keep your mics mute. We are just waiting for some other people to join. We will start shortly within next 1 minute. So, thank you so much for joining all the participants. For today's session, we have with us Dr. Hafsa Jibran. She is a clinical pharmacist at Dow University. She has over 18 years of experience of transforming pharmacy services into high-impact patient-centered care. She's ASHP certified in pharmacy informatics and credentialed in toxicology. She brings a rare blend of clinical expertise, digital health leadership, and program development skills. From designing cutting-edge drug therapy guidelines to superheating residency accreditation programs, she excels at building systems that enhance safety, streamlining workflows, and empower healthcare teams. She is passionate about driving changes, mentoring professionals, and delivering measurable results in the hospital pharmacy practice settings. So, over to you, Ma'am Hafsa. For the participants, we will keep the question answer session in the end of the session. So till then, keep your mic mute and write down your questions so that you do not miss on anything. Thank you so much. Over to you, Ma'am Musa. Thank you, Parshottam. Thank you for the introduction. I am not the clinical pharmacist. I am the assistant manager clinical pharmacy at Dow University Hospital. Let's start today's session and almost काफी चीजें तो परशोत्तम बता चुके हैं. So we'll formally start our presentation. How many participants do we have, Parshottam? If we can have a little bit of introduction that what type of क्या हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं या हमारे पास कुछ प्रैक्टिशनर्स भी मौजूद हैं? No, most of them are students. हमारे पास अभी total 23 participants हैं. ठीक है चले. My introduction has already been given. So my name is Hafsa Jibran and currently working as an assistant manager at Dow University Hospital. Now, conducting this session was basically to make you guys aware about the ASHP professional certifications. So, as I am myself a pharmacy informatics certified from ASHP, so today I'll be briefing you regarding the way how to do those certifications and what are the benefits and considerations, or you can say the prerequisites of having these certifications. So mostly जितनी भी American Society of Health System Pharmacist, हम पहले इसकी बात करते हैं. Please next कीजिएगा presentation की slide. So the contents of today's presentation, as mentioned in the slide, कि हम पहले ASHP की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे किस तरह की certification ASHP दे रहा है, and उसका आपके career पे क्या impact होता है, globally आप कैसे recognize होते हैं, and फिर हम इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाएंगे कि वहां आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को परसू करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड. नेक्स्ट प्लीज. So first of all, we all should know what is American Society of Health System Pharmacists. It's a global organization जो कि American based है, and obviously it offers various professional certifications. और उसके अलावा pharmacist के लिए भी pharmacy technicians यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक्चुअली फार्मेसी टेक्नीशियंस जो है वो यहाँ पर इतना एप्लीकेबल नहीं होता. हमारे पास, हम इसको इंटर्न्स कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटर्न्स होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं, सो दे आर मोर एप्लीकेबल फॉर दैट. जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूएस में एंड अब्रॉड द फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो बेसिकली पहले फार्मासिस्ट एज अ टेक्नीशियन काम करता है, और उसके बाद फिर वो फार्मासिस्ट जब एक टाइम पीरियड दे देता है उसके बाद वो एज अ फार्मासिस्ट कहीं पे भी इनरोल हो सकता है. So ये various certifications in different fields करते हैं. इसमें से majority of them are related to the hospital and community pharmacy. So ये field basically certifications उन लोगों के लिए है जो कि hospital या community pharmacy connected रहना चाहते हैं. Hospital pharmacy in Pakistan is in the phase of development and काफी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं places ऐसी जहाँ पे hospital pharmacies को basically एक अच्छा setup मौजूद है, जबकि कम्युनिटी फार्मेसी हमारा अभी स्टिल लैक कर रहा है. क्योंकि देखिए कम्युनिटी फार्मेसी, और मगर आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जो सबसे ज्यादा आपकी पोजीशंस होती है, या हमारे पाकिस्तान से जितने लोग जाते हैं ज्यादातर कम्युनिटी फार्मेसी के सेटअप में जाते हैं. सो अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगी तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके समझ लें क्रेडेंशियल्स को बढ़ाती हैं.
एंड दैट विल हेल्प द एम्प्लॉयर कि आपकी हायरिंग में या आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, किसकी नॉलेज आपके बारे में अच्छी, या एक एम्प्लॉयर के लिए आइडेंटिफाई करना इजी होता है. नेक्स्ट प्लीज. So there are different types of certification that ASHP is providing. एक तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है, एक बोर्ड सर्टिफिकेशन होती है. दोनों में क्या डिफरेंस है लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन. एंड उसके अलावा एसएचपी एक्रेडिटेशन फॉर रेजिडेंसीज एंड टेक्नीशियंस है, इसको हम आज कवर नहीं करेंगे. द रीजन बीइंग कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस परस्यू करती हैं. एएसएचपी सर्टिफिकेशन पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेती है. सो जैसे कि रिसेंटली आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में भी एएसएचपी की एक्रेडिटेशन हुई है एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कोर टीम. सो वो पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि 2 से 3 समझ लें आपके ऑडिट डेज होते हैं, जिसमें वो प्रॉपर आपकी प्लानिंग एंड एवरीथिंग देखते हैं. फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक्रेडिटेड करते हैं टुवर्ड्स एएसएचपी. सो पर्सनल नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है, तो वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट फर्स्ट 2 विल बी डिस्कसिंग टुडे. नेक्स्ट. सो एएसएचपी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स ऑलरेडी जैसे कि सेल्फ बेस्ड होती है. ये बेसिकली करिकुलम बेस्ड होता है. वंस यू हैव टू परचेज दो सर्टिफिकेशंस, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे और उसके बाद आपने उनको परचेज करना है सर्टिफिकेशंस को. वंस you do that, then you'll be having access to those certifications based on your interest. ठीक है. इसके पास एक एम्पल टाइम आपके पास होता है, अराउंड 1 ईयर का टाइम आपके पास होता है. डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आप स्टेप बाय स्टेप एज पर द फिजिबिलिटी अपने टाइम के हिसाब से आप उनको ऑप्ट करके और उन सर्टिफिकेशंस को अचीव कर सकते हैं. जितने आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल अगर 7 मॉड्यूल्स हैं तो इट डिपेंड्स, समटाइम्स एक एक मॉड्यूल के अंदर 6-6 7-7 प्रेजेंटेशंस होती हैं. आफ्टर एवरी मॉड्यूल देयर इज अ टेस्ट. वो टेस्ट खत्म होता है, फिर आप दूसरे मॉड्यूल की तरफ परसू करते हैं. इसी तरह जाके बाय द एंड व्हेन यू कंप्लीट ऑल द मॉड्यूल्स, देन यू विल बी हैविंग अ ग्रैंड टेस्ट एंड फिर आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिलती है. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, उसके अलावा अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा टाइम की फिजिबिलिटी है. आप अगर बिजी हैं द मॉर्निंग, इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, और आपके पास इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए फिजिबल टाइम हो आप उसको ऑप्ट करके और वो कोर्सेज को अचीव कर सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा आपकी नॉलेज या आपके इंटरेस्ट बेस्ड होता है. इसमें अराउंड अच्छी खासी सर्टिफिकेशन है, अराउंड 20-25 सर्टिफिकेशन मौजूद हैं जो कि मैं आगे आपको ब्रीफ भी करूंगी कि किस किस टाइप की हैं. सो यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ देम as per your interest, and after that you will be given a badge that you are already certified. Of course I'll be mentioning the courses. आपको आगे slides में courses के नाम सब चीजें दिखेंगी. There will be a thorough tutorial as well, जहाँ पे आपको किस तरीके से जाके क्या करना है. अभी just हम एक overview दे रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा हमने ये देखना है कि हमारी फील्ड से रेलेवेंट क्या है और फिर हम उसको ऑप्ट करेंगे. जैसे मैंने जब इन्फॉर्मेटिक्स किया था तो वो इसलिए रेलेवेंट था बिकॉज वी वर इन द फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन एट AKUH. So at that time, I was working in AKUH, so I thought that that would be beneficial for me, and that was. Next, please. Next slide, please. Okay, now the types included, Maliha, as you can see, pharmacy informatics है. ठीक है. उसके बाद आपका ये पता चलता है कि इसमें कितने क्रेडिट, मैंने ये भी लिखे हुए कितने क्रेडिट आवर्स हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है. सो दैट यू कैन प्लान योर एक्टिविटी अकॉर्डिंगली. इसी तरीके से मेडिकेशन सेफ्टी है, डायबिटीज है, क्लिनिकल फार्मेसी की बेसिक्स हैं. आई वुड प्रेफर कि स्टूडेंट्स शुड गो फॉर दीज क्लिनिकल फार्मेसी बेसिक्स so that they could have a knowledge regarding the basic aspects of the clinical pharmacy. Pharmacy leadership ये basically management के aspect से ज़्यादा useful होती है. और स्टाइल प्रिपरेशन, इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल और आप किसी स्टाइल एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर लाइक यू आर अ कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट, देन दिस वुड बी गुड फॉर यू. कितने आवर्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन इट. जब आप वेबसाइट पे जाओगे आप तब भी देख सकते हो कि कितने मॉड्यूल्स हैं वहां पर. नेक्स्ट प्लीज. ओके. ये उसके अलावा है, ये मैंने कुछ के आपको क्रेडिट आवर्स एंड मॉड्यूल्स लिख दिए थे. बाकी इसके अलावा ये सब हैं पेन मैनेजमेंट, टीचिंग, एंटीकोएगुलेशन, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स, रिसर्च बेसिस बहुत होती हैं. उसके अलावा एआई, एज यू नो के द वर्ल्ड इज now more towards artificial intelligence and robotics and everything. So additional courses जो अब इन्होंने relaunch किए हैं, that is basically the AI in pharmacy and all.
नेक्स्ट प्लीज। ओके अच्छा, अब जो बोर्ड सर्टिफिकेशन होती है उसमें बेसिकली आपके पास फार्मेसी लाइसेंस होना जरूरी है और आपका एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में होना बहुत जरूरी है। बट फॉर दीज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं आप तब भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड होता है कि आप अपनी 5 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसको ऑप्ट करें ताकि आपको एक बेसिक पता हो। बीच में आप करेंगे तो शायद आप इतना ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए नहीं होगा। उसके अलावा ऑब्वियसली ऑल द मॉड्यूल्स आर इन इंग्लिश, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। इंटरनेट एक्सेस आपके पास होना चाहिए। अगर आप एएसएचपी के मेंबर हैं जो कि एक एनुअल फी चार्ज करते हैं तो फिर आपकी सब्सिडाइज्ड होंगे आपके ये कोर्सेज। बट अगर आप मेंबर नहीं है तो नॉन मेंबर के रेट अलग है, मेंबर्स के रेट अलग है। ठीक है, टाइम कमिटमेंट ऑब्वियसली आप कितने सीई का ले रहे हैं आपको उसी हिसाब से उसको एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना होता है। जब एक दफा आप अनलॉक कर लेते हैं अपने कोर्स को तो फिर आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना होता है। कॉस्ट जनरली वेरी कर रही है, $400 से लेकर $900 तक है, डिपेंड कर रहा होता है। अगेन जैसे कि मैंने बताया, मेंबर्स हैं आप, अगर आप बल्क एनरोलमेंट कर रहे हैं या आपका इंस्टीट्यूशन परचेज कर रहा है तो वो फिर आपको सब्सिडाइज रेट होंगे। नेक्स्ट प्लीज। नाउ द अदर वन, अभी हमने एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की बात कर ली, दूसरी जो है दैट इज बोर्ड सर्टिफिकेशन वाया बीपीएस, दैट इज बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटीज। इसमें और उसमें क्या फर्क है? जैसे कि हमने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की बात की वो सेल्फ बेस्ड होता है, जबकि यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी करके एंड सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाके ऑप्ट करते हैं। इन पाकिस्तान, इन कराची भी दे हैव अ सेंटर जो कि रिकग्नाइज्ड है बाय द एसएचपी यूएस, एंड बेसिकली वहां पर एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। इट्स अ लेंथी एग्जाम ऑफ अराउंड 3 आवर्स। सो इसके लिए आपको एक थॉरो स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी थी। देयर आर मटेरियल्स अवेलेबल जिसका मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। ये वो स्पेशलिटीज हैं जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में हैं। अच्छा, इनकी क्या एब्रिविएशन है आगे मैंने लिखी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डियोलॉजी में करते हैं तो बीसीसीपी है। एम्बुलेटरी केयर में अगर आप स्पेशलाइज होते हैं, ये बेसिकली जैसे फिजिशियन की स्पेशलिटीज होती हैं तो ये फार्मासिस्ट की स्पेशलिटीज हैं। वो सर्टिफिकेशन है, ये आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उस फील्ड में। ठीक है, लाइक एम्बुलेटरी केयर है, कंपाउंडिंग, स्टाइल प्रिपरेशन है, क्रिटिकल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज इज वेरी मच इनटू प्रैक्टिस राइट नाउ। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आपको ये देखना है कि कितने फार्मासिस्ट आपके बोर्ड सर्टिफाइड हैं बाय एएसएचपी, तो दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इन पाकिस्तान ऑन्कोलॉजी सर्टिफाइड भी मौजूद है। लाहौर में ज्यादातर शौकत खानम में, शिफा में है। ठीक है, कराची में आखान में भी हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में लोगों ने नहीं किया। अच्छा, इसमें आप जब वेबसाइट पे जाएंगे ना आपको ग्लोबली पता चल जाएगा कहाँ पर कितने कितने बोर्ड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट आर अवेलेबल जो कि स्पेशलाइज्ड है। नेक्स्ट। नाउ हु कैन अप्लाई? नाउ फॉर दैट आपको लाइसेंस होना जरूरी है। इन बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए आपका कम से कम 3 से 4 साल का प्रैक्टिस उस रिलेटिव फील्ड में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। रिलेटिव फील्ड से मेरी मुराद क्या है? रिलेटिव फील्ड से मेरी मुराद है, अगर आप एम्बुलेटरी केयर में कर रहे हैं तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम एम्बुलेटरी केयर का होना चाहिए। अगर आप कार्डियोलॉजी में कर रहे हैं तो आपका सेगमेंट कार्डियोलॉजी से रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन्फेक्शियस डिजीज में कह रहे हैं तो 3 साल आपका एक्सपीरियंस इन्फेक्शियस डिजीज का भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के आपको कुछ सीपीडी शो करने पड़ते हैं कि आपके पास कुछ क्रेडिट्स हैं कि आप ये सर्टिफिकेशन या ये आप कह लें कोर्सेज अटेंड करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अच्छा, प्रेपरेशन इसकी कहाँ से होती है? देयर आर रिव्यू कोर्सेज, थेरेप्यूटिक मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि एसीसीपी के अमेरिकन अमेरिकन अकेडमी है एक, जो कि आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज दे रही होती है। तो वहां से आप जाकर बहुत सारे इनके लाइव फॉर्मेट्स को देख सकते हैं, जो कि कुछ इनके पास टेस्ट पेपर्स भी होते हैं जो कि आपको जस्ट हेल्प आउट कर रहे होते हैं आप अटेम्प्ट करके, और आपको पता चल सकता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, बट दैट इज अ वेरी टफ एग्जाम। सो ऑनलाइन भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब मैं अभी आपको उसका टूर कराऊंगी तो यू बी एबल टू सी दैट। नेक्स्ट। सो चूज अ स्पेशलिटी। आप सबका सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 साल एम्बुलेटरी केयर में लगा लिए हैं या 3 साल आपने स्टाइल एरिया में लगा लिए हैं तो अब आपको बोर्ड सर्टिफाइड के लिए आप एलिजिबल हैं।
ठीक है, यानी आप स्पेशलाइज कर सकते हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके प्रैक्टिस आवर्स उस रेलेवेंट फील्ड में होने चाहिए। ठीक है, इनकी वेबसाइट है वीपीएस वेबसाइट, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद होती है, उन सारे जो जो उनको आपके रिक्वायरमेंट, अच्छा दे नीड ऑल द रिक्वायरमेंट्स और ऑल द प्रूफ्स ऑफ योर रिलेटिव एक्सपीरियंस। आपसे उन्होंने जो जो लिस्ट पूरी दी हुई थी, इट्स अ बिग लिस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप अपना रिलेटिव एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप कब से कब तक इस रेलिवेंट फील्ड में मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका लाइसेंस होना चाहिए, फार्मेसी लाइसेंस जो फार्मेसी काउंसिल से होता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको आपके चाहिए होते हैं, आपकी डिग्री कॉपी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा, इनकी भी फीस होती है। ये फीस भी अराउंड 600 टू 700 यूएस डॉलर्स होती है। ठीक है, अब वो आप देते हैं, एग्जाम फीस अलग होती है और फिर रीसर्टिफिकेशन करने की अलग होती है। ठीक है, सो आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट पे जाके सारा, इवन इनका पूरा ट्यूटोरियल भी जो है वो एक बुकलेट फॉर्म में इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने किसी पीयर से जिन्होंने क्लियर किया हुआ है या फिर अपने सीनियर से जो कि आपको पता है कि किसी बोर्ड सर्टिफिकेशन में स्पेशलाइज कर चुके हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम। यू कैन टेक एमसीक्यूज। अब तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, वो लोग जो एग्जाम क्लियर कर चुके होते हैं वो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे होते हैं, लोगों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं कि किस तरह का एग्जाम आता है। सो इधर आप ऑनलाइन मटेरियल को खुद से सेल्फ स्टडी कर लें या फिर आप किसी भी मेंटोर से जो कि एसएचपी क्रेडेंशियल्ड है, जो कि एसएचपी स्पेशलाइज्ड है किसी फील्ड में रेलेवेंट, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम आपका स्केड्यूल्ड होता है, साल में 2 दफा होते हैं एग्जाम्स। ठीक है, ये साल में 2 दफा आपके एग्जाम्स होते हैं और वेन्यू और सब चीज डिसाइड होती है। वंस आप एनरोल हो जाते हैं ना, तो फिर आपको वो कांटेक्ट खुद करते हैं और आपको उनकी वेबसाइट पे जाके भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपने कहाँ जाकर किस जगह कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम है। इनके सेंटर्स हैं यहाँ पर क्लिफ्टन पर है, यहाँ पे जो इनका सेंटर है कराची में, वहां पे आपको जाना था, इस्लामाबाद में भी, आई थिंक लाहौर में भी है। सो इनके रजिस्टर्ड सेंटर्स पे आपको जाके एग्जाम में अपियर होता है। बहुत कम लोग होते हैं वहाँ पे और 3 घंटे तक आपको वो एग्जाम अपना कंप्लीट करके अराउंड 100 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज नॉट ओनली वन टाइम थिंग। ठीक है, रीसर्टिफिकेशन इज नेसेसरी। हमें ये क्रेडेंशियल्स जो हमें सर्टिफिकेशंस मिली होती है 7 साल तक होती है, आफ्टर एवरी 7 years वी नीड टू रीसर्टिफाई दैट। रीसर्टिफिकेशंस के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप दोबारा से एग्जाम में अपियर हो, जो कि रिलेटिवली इतना टफ नहीं होता और इतना लेंदी नहीं होता। आप उसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप उसकी एग्जाम दे देंगे। दूसरा आपके पास होता है तरीका कि आप बहुत सारे कंटिन्यूस एजुकेशन के क्रेडिट्स लेने होते हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और वहां पर जाकर आप जो है उतने सीज उसके एग्जाम दे दे के फिर आपका एक, जब एक क्रेडिट आवर्स की एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद वो आपको रीसर्टिफाई कर देते हैं आफ्टर 7 years। नेक्स्ट, ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई, या तो आपको एसएचपी एसीसीपी के क्रेडेंशियल्स पूरे करने होते हैं या फिर आप 7 साल बाद दोबारा एग्जाम देंगे। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नाउ द बेनिफिट्स ऑफ दी सर्टिफिकेशन देखें। अगर आप मिडिल ईस्ट की साइड पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। इन पाकिस्तान भी ऐसा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि अगर आप कोई बोर्ड सर्टिफिकेशन ले लेते हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी, तो यू विल गेट एन रिम्यूनरेशन प्लस आपकी सैलरी से एडिशनल। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे कर रहे हैं मगर सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ये करते हैं कि जब आप एक दफा सर्टिफिकेशन ले लेते हैं या फिर आपको एक दफा कोई स्पेशलिटी मिल जाती है तो आपको प्रमोशन मिल जाती है। बट इन मिडल ईस्ट कंट्रीज आपके लिए ये मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि मिडल ईस्ट में हर कोई जो है वो सर्टिफाइड है, बोर्ड सर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये अब इन फ्यूचर आपकी एक रिक्वायरमेंट ऐसी होती जा रही है, क्योंकि यूजुअली लोग मिडल ईस्ट से मूव करते हैं यूएस यूके की तरफ। सो ये सारी वो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपके क्रेडेंशियल्स को बढ़ाती हैं। फिर दूसरा, आपको यूएस बेस्ड प्रैक्टिसेस का पता चलता है। आप जब उनके ही कोर्सेज को अटेम्प्ट करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ की प्रैक्टिसेस से नो हाउ होगी जो कि आपके लिए आगे बेनिफिट करता है व्हेन यू मूव आउट टू दोस कंट्रीज। सो ये आपको नॉलेज और स्किल एनहांसमेंट के लिए मैंडेटरी होता है, अगर तो इफ यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड। नेक्स्ट प्लीज।
नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल एलिमेंट, ऑब्वियसली अगर आप एएसएचपी लर्नर हैं तो वहाँ पे ग्लोबली जितने लोग आपके सर्टिफाइड या स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड फिर नंबर ऑफ इवेंट्स की आपको बार बार उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एनुअल इवेंट हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, तो वो आपको सब इंफॉर्मेशन होती हैं, देन यू हैव अ चांस ऑफ मीटिंग ऑल द प्रोफेशनल्स ओवर देयर, एंड अ गुड नेटवर्किंग आपकी एक बिल्डअप हो सकती है। लीडरशिप ऑफ इंफॉर्मेटिक्स जो है वो अभी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन ट्रेडिशनल फार्मेसी रोल्स की तरफ है। इट मीन्स के जो लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट पोजीशंस पर हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल है। अभी जो है इन फ्यूचर ऑब्वियसली जिनके पास ये सर्टिफिकेशन होंगी उनको एज होगा, बट लीडरशिप तो ऑब्वियसली उसी तरफ जाती है, मगर इंफॉर्मेटिक्स इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज the world is evolving towards the robotics and everything, as you guys know. सो हम जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, हम बात करते हैं एआई की। सो आपको ये सारी चीज़ें फार्मेसी इंफॉर्मेटिक्स से अचीव हो सकती हैं, आपकी नॉलेज विल एनहांस बाय दिस। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नॉन यूएस फार्मासिस्ट, एज हम लोग नॉन यूएस ही हैं तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको दी कि आपके लिए ज़्यादातर ये चीज़ें क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपकी स्पेशलिटी को ज़्यादा बताते हैं कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या कहाँ अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, बहरहाल ये कि यूएस की तरफ जाते हैं अगर आप, तो वहाँ की सर्टिफिकेशंस और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होता है, बट नाउ इट्स ग्लोबली एंड locally recognized certificates, so आपके लिए beneficial होंगे as a specialized pharmacist. Next please. सो चैलेंजेस क्या है आपके पास? ऑब्वियसली टाइम है, आपको स्केड्यूल इसको प्रॉपर्ली करना होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलते फिरते और आपने कहा चलो भी एग्जाम देके आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज बेसिकली नॉट दैट टाइप ऑफ एग्जाम जो कि हम फार्मडी के 5 सालों में देकर आते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑब्वियसली दैट इज अ मेजर कंसर्न। पहले आप इतने अरसा जॉब करेंगे, देन आपकी इतनी सेविंग्स होंगी, फिर आप अप्लाई करेंगे, बिकॉज यूएस डॉलर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं पीकेआर में तो दैट्स तकरीबन लाखों में अमाउंट बन जाती है। सो ये आपको खुद प्लान करना है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। फिर ऑब्वियसली अगर आपको एग्जाम का फेयर है तो आप मॉक टेस्ट में अपियर हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे और उनको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट प्लीज। सही, आपके पास कॉल टू एक्शन इज दैट कि यू हैव टू डिफाइन योर गोल, सेलेक्ट अ पाथ, एंड फ्रॉम टुडे यू कैन डिसाइड इट, सो दैट वुड बी हेल्प यू टू मेक योर करियर। कि आपकी अपनी, जब आप ये कन्फाइंड हो जाएंगे कि आपका अपना करियर गोल क्या है, तभी आप इन सर्टिफिकेशन से बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ Aisha, can you please log into this website that is ashp.org? अच्छा ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज अ वेबसाइट, एनीबडी ऑफ यू कैन रजिस्टर ऑन टू इट। ठीक है, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि मेरा अकाउंट तो बना हुआ है। लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। वेट अ मिनट। चलिए मैं आपको फिलहाल मैं बता देती हूँ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जाइए। यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट का नीचे ऑप्शन, यस, नाउ यू कैन सी एएसएचपी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लास्ट थर्ड नंबर पे है नीचे से, एंड बोर्ड सर्टिफिकेशन रिसोर्सेज। इन दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं। एएसएचपी प्रोफेशनल पे चले जाएं पहले आप। ठीक है, अब नो स्क्रॉल डाउन प्लीज। ठीक है, सो और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यस, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पर आपको सारे सर्टिफिकेट्स नजर आएंगे। ठीक है, इस पे जब हम लर्न मोर पे जाएंगे तो वो हमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन देगा, इसमें से कोई भी आप एक पिक कर लीजिए आयशा।
ठीक है, जब हम ये ऐड टू कार्ट करेंगे तो फिर इसका हमें एक्सेस, और वो हमसे पेमेंट मांगेगा ऑब्वियसली। सो दैट पेमेंट इज इन यूएस डॉलर्स। आप नहीं दे सकते हैं मेंबर की, यहाँ पर आप चार्जेस देख लेते हैं 395, एंड फॉर अ नॉन मेंबर दिस इज 495 यूएस डॉलर्स। ठीक है, वंस यू गो फॉर, अच्छा इसकी रिलीज डेट एंड एक्सपायरेशन डेट आप लेफ्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, 23 जुलाई को ये ओपन हुआ है कोर्स। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा ये सर्टिफिकेशंस 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल इज अ गुड अमाउंट, मगर आप जिस वक्त अप्लाई करेंगे या आप इसको जब परचेज करेंगे तो आपके पास 1 साल का पीरियड आता है या 6 मंथ्स का आता है, डिपेंड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है ये, जब आप ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको पता चलता है। अच्छा, इस सर्टिफिकेशन की अगर आप फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रॉल डाउन। अच्छा, अब यहाँ पे आप कोर्स मॉड्यूल, इफ यू वांटेड टू गो इन डीप तो कोर्स मॉड्यूल को क्लिक कीजिए। ठीक है, अब ये कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, एज यू कैन सी दैट कितने घंटे का ये होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पहला टॉपिक वुड बी फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल प्रिमर्स। ठीक है, दैट वुड बी 1.5 आवर्स। उसके अलावा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड रीनल डोजिंग इश्यूज जो कि 2.25 आवर्स का है, क्रेडिट आवर्स है ये। ठीक है, इस तरह करते करते हर मॉड्यूल के बाद आपका टेस्ट अपीयर होता है, आपको टेस्ट करना होता है। ठीक है, आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। जब तक आप वो अच्छा, इसमें वीडियोस भी हैं, ठीक है, पूरी पूरी वीडियोस है, और वही प्रेजेंटेशंस आपको मिल जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ। ठीक है, अब आप वो दोनों चीजें अपने पास सेव कर सकते हैं, वीडियो भी और आपकी प्रेजेंटेशन जो आपको पीडीएफ में मिलती है वो। और उसके बाद फिर आप टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका मॉड्यूल आएगा, जब आप वो क्लियर कर लेंगे उसका आप के 80% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए उसके लिए। अगर 80% से कम आपका स्कोर होता है तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जंप नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन मॉड्यूल आपको 80% मार्क्स लेना जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से आप वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स पूरे करेंगे। तो जब वेंकोमाइसिन फार्माकोकाइनेटिक्स में आएंगे, जब वो भी आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको फाइनल असेसमेंट होगा। पहले वेंकोमाइसिन फार्माकोकाइनेटिक्स का होगा, फिर फाइनल असेसमेंट होगा जो कि थॉरोली सारे के सारे 7 मॉड्यूल्स के बारे में होगा। ठीक है, आप फिर दोबारा से उन 7 मॉड्यूल्स को ऑप्ट के हवाले से, वो सबसे ज्यादा डिटेल होता है, अराउंड 50 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, बाकी हर मॉड्यूल के बाद तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास जो कि आपको क्लियर करने होंगे, और फाइनल असेसमेंट में आपके 50 के अराउंड क्वेश्चन होते हैं, और वो भी आपका, अच्छा उसमें आपको पासिंग मार्क्स अराउंड 90 चाहिए होते हैं, 90%। सो ये सारा जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर फाइनल कंप्लीशन की तरह जब आप चले आते हैं, देन वो आपसे आपकी क्रेडेंशियल्स और डिटेल फर्दर जो कि ऑलरेडी आप पहली दफा रजिस्टर करने में डाल चुके होते हैं वो सब आपको सेंड करता है। सर्टिफिकेशंस का आपको पता चलता है कि आपका सर्टिफिकेट इस तरीके से आएगा। एक उनको रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए होता है, वो आपको देंगे, एंड देन फाइनली यू वुड बी एबल टू गेट सर्टिफाइड। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि ऊपर आइएगा प्लीज आयशा। अच्छा, यहाँ पे आप यस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे जाइए। ओके, एएसएचपी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के नहीं, प्रैक्टिस रिसोर्सेज पे जाइए, प्रैक्टिस रिसोर्सेज बराबर में है बेटा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बराबर में है प्रैक्टिस रिसोर्स। ऑन द टॉप देयर इज एट फर्स्ट टैब, और ऊपर और लेफ्ट, प्रैक्टिस रिसोर्सेज। यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रिसोर्स सेंटर है ना, जब आप आते हैं यहाँ पे नीचे, तो यहाँ रिसोर्स सेंटर में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, रीडिंग मटेरियल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लर्न भी कर सकते हैं। somebody has asked me के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर। मेंबर का मतलब ये है कि आपको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट के मेंबर है, इसकी एक फीस होती है जो कि एनुअल चार्जेस होते हैं, दैट इज अराउंड 545। ठीक है, यू कैन सर्च दैट हाउ टू बिकम एन एएसएचपी मेंबर। तो वो एनुअल फीस है जो आपको हर साल देनी होती है, आप वो देते रहेंगे तो आप मेंबर होंगे, तो उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है उनको। ठीक है, और वो भी आप कम से कम तकरीबन 2 से 3 साल के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ एक चीज और, आई थिंक जब आप लोग लॉग इन करेंगे तो शायद आप लोगों को मिलेगा इसमें कि फ्री कुछ इनके सर्टिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, फ्री सर्टिफिकेशन मोस्टली फार्मासिस्ट रिटन एएसएफपी सर्टिफाइड।
अच्छा, इसको हम देखते हैं, अभी आपके क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, पहले हम बोर्ड सर्टिफिकेशन वाले दूसरे ऑप्शन को देख लें। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस का हो गया, ये आप लोग कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन फ्री कोर्सेज एज वेल, फ्री सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं इसी वेबसाइट पे। वो 1.5 2 आवर्स के क्रेडिट्स होते हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं, और बाय द सेम मेथड, उसका भी मेथड यही होता है। यस, बोर्ड सर्टिफिकेशन का ऑप्शन ओपन कीजिएगा, दिस इज द सेकंड वन जो कि हमने अभी बात की थी। जी प्लीज ओपन इट। ठीक है, अगेन नीचे आएगा, ये सारे वो ऑप्शन हैं जिनमें आप जाएंगे। एम्बुलेटरी केयर है, कार्डियोलॉजी फार्मेसी है। अब आप इसमें प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी आप देख सकते हैं कि हर ऑप्शन के अंदर, हर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको रिवॉर्ड प्रोग्राम, रीसर्टिफिकेशन एक्टिविटीज, सब कुछ इन डिटेल यहाँ पर मौजूद है। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड यू हैव टू गेट द कंप्लीट मटेरियल इनटू इट। ठीक है, और इनके पूरे पूरे वीडियोस हैं। ठीक है, आप इसमें से इमरजेंसी खोल लीजिए या कोई भी एक खोल लीजिए रिसोर्सेज, तो आपको पता चल जाएगा। You can explore this website as much as you can. So this is very user friendly as well. So you won't be having any issues. नीचे प्लीज। ठीक है, अब आप ये सकते हैं ACCP, अगर मेंबर आप हैं तो यहाँ ऑर्डर करेंगे, आप नॉन मेंबर हैं तो आप कहाँ करेंगे ये चीजें। प्रैक्टिस एग्जाम नीचे आइएगा। ठीक है, ये यहाँ पे डेट्स आपको दिए। अच्छा, एक काम ये कीजिएगा आयशा, मेरी प्रेजेंटेशन में एक और लिंक है ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू प्लीज ओपन दैट। Benefits of ASHP certificate is that your credentials will be enhanced. ठीक है, जब आपकी क्रेडेंशियल्स एनहांस होते हैं तो वो आपकी स्पेशलिटी, एक डॉक्टर अगर कोई स्पेशलिटी ऑप्ट करता है तो वो उसकी स्पेशलिटी बन जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी भी स्पेशलिटी अगर आप देखना चाहें, अब जैसे कि मैंने आपको अभी पहले इनिशियली भी बताया था कि व्हेन आई ऑप्टेड फॉर इंफॉर्मेटिक्स सर्टिफिकेशन, तो द रीजन वाज कि एट दैट टाइम माय इंस्टीट्यूट वाज गोइंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड implementation in the organization, and that informatics certification helped me a lot. ठीक है, अच्छा इसके ऊपर लिंक है एक, ये आपने भी वो दूसरा लिंक ओपन किया हुआ है। ओके, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्होंने अपडेट दी हुई है इनकी वेबसाइट पे कि जनवरी 2026 में होगा आपका, और 15 मतलब इन्होंने पूरी डेडलाइंस दी हुई है रजिस्ट्रेशन कब तक होंगी एग्जाम की, जो 2025 में होगा, और डेट एंड एवरीथिंग। वेन्यूज फिर आपको कराची से पता चल जाते हैं। ठीक है, अब माई बीपीएस में अगर आप जाएंगे तो माई बीपीएस में जब एनरोल करेंगे तब आपको पता चलेगा अबाउट ये स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन का ऑप्शन ओपन कीजिएगा, नीचे आइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक खोल लीजिए। पीडियाट्रिक खोल लें। स्क्रॉल डाउन प्लीज। ठीक है, अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन अगर आप करेंगे तो आपके पास वो वेन्यू ओपन हो जाएगा कि आप वहाँ फी पे करके, जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, अप्लाई फॉर रीसर्टिफिकेशन, तो यू हैव टू गो फॉर द रीसर्टिफिकेशन टास्क। स्क्रॉल डाउन प्लीज। ठीक है, ये सारे उनके मेंबर्स हैं। यहीं पर हमारे पास एक पूरी कैटलॉग होती है, नीचे आप देखिएगा। ठीक है, लेफ्ट में मेन्यू देखिएगा। अभी कैंडिडेट्स गाइड मौजूद है, कंटेंट आउटलाइन फॉर BCPS। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सैंपल एग्जामिनेशन आइटम, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, ऑल यू कैन गो कि आप एक एक करके इन सब चीजों को देखेंगे, आउटलाइन भी आपको दी हुई है। ठीक है, इन सब चीजों को आप वन बाय वन ओपन करेंगे तो एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। नीचे टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद है। ठीक है, लोगों के आपको वो भी मिल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ द सर्टिफिकेशन। आई थिंक प्रेजेंटेशन में और कुछ तो नहीं मौजूद है, देखिएगा प्लीज। इसके बाद आई थिंक हमारी, yes, that's it. ठीक है, so this is all about the tutorial of those two websites. Now I'm available for the questions. ठीक है, and कुछ questions मैं बीच में देख रही थी जो हमारे पास आ रहे थे, just a minute. ठीक है, so we have lot of questions over here. ठीक है,
please provide recording. अच्छा ठीक है. Please do mention the price of these courses and how to enroll. Maliha, I've already told you the price. 400 से लेके $900 तक query कर रहे हैं. And how to enroll, there was a step by step thing already mentioned and मैंने आपको website पे भी बता दिया आप कैसे कर सकते हैं. What is meant by members? Members मैंने आपको बता दिया, अगर आप annual pay करेंगे उसका registered member होने के लिए, जो कि easily आपको पता चल जाएगा. Just search on Google how to be a member of ASHP. ठीक है, वो आपको खुद ही उसकी तरफ डायरेक्ट कर देगा. Mostly, अच्छा, most pharmacists written ASHP certified. Is this certified in all programs or single? ठीक है, like अगर मैं लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ ASHP Pharmacy Informatics Certified. ठीक है, तो मैं इन्फॉर्मेटिक्स में सर्टिफिकेशन मुझे ली हुई है, इसलिए मैं वो कहती हूँ आप जनरलाइज ASHP, पूरा ASHP तो नहीं हम सर्टिफाई हो सकते ना. अच्छा, ASHP एक्रीडेशन जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जब एक्रीडेटेड होती है तो वो सर्टिफिकेशन वो फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड होती है, मगर इंडिविजुअल जो है वो किसी एक कोर्स में या 2 कोर्स में या 3 कोर्स में जितने आप करते हैं उसमें होंगे. What are the benefits of having ASHP? मैंने अभी आपको बता दिया, आपके अपने इंटरेस्ट बेस्ड है, आपकी स्पेशलिटी बताता है और एम्प्लॉयर्स के लिए आपकी स्पेशलिटी को जज करना इजी हो जाता है. और बहरहाल एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है तो व्हाई नॉट, इट इज. बहुत सारे मैंने दोबारा मैं बता देती हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि रिन्यूमरेशन एडिशनल देती हैं आपकी सैलरी के साथ. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सर्टिफाइड है तो मंथली आपको एक अमाउंट उसमें ऐड हो रही थी, या फिर आपकी प्रमोशन हो जाती है बेस्ड ऑन दी सर्टिफिकेशंस. I am a 4th year student of PharmD. Suggest I do this course during graduation after. I would suggest कि आप 5 साल का अपना कर लें PharmD और उसके बाद आप ऑप्ट करें ताकि आपके लिए आसान होगा. But if you really think that you are having some internships, आपने कहीं हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको वो हेल्पफुल हो सकता है. बट अगेन ये आपके अपने, आप समझते हैं अगर आपका एक्यूमेन इस वक्त इतना है या आपको भी और टाइम चाहिए. सो बट आई वुड प्रेफर कि मैं सजेस्ट ही करूंगी आप 5 साल की ग्रेजुएशन के बाद इसको ऑप्ट करें. दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. ठीक है, व्हाट इज द सीई और सीएमई क्रेडिट? सीई क्रेडिट्स ये होते हैं जो कि पाकिस्तान में तो नहीं इतने एप्लीकेबल होते, पाकिस्तान में भी अब होते हैं खैर, मगर बाहर में अगर आप कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या कोई भी कोर्स को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उसके सर्टिफिकेट पे मेंशन होते हैं. दैट इज कंटिन्यूअस एजुकेशन क्रेडिट्स या कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, सीएमई इज मेडिकल एजुकेशन. ठीक है, तो वो आपके सीवी में ऐड होते रहते हैं. आपको जैसे कि रीसर्टिफिकेशन के लिए आपको फॉर एग्जांपल 30 क्रेडिट आवर्स चाहिए तो आप वो अप्लाई करेंगे उसके लिए. आपके जब उन सर्टिफिकेशंस को आपको शो करना होगा, हर सर्टिफिकेशन में सीएमईस मेंशन होते हैं. मैम क्या इनके लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस जरूरी है? बोर्ड सर्टिफिकेशन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग स्टूडेंट आप जब हैं, अभी आप 3rd ईयर 4th ईयर की में, तब भी आप कर सकते हैं. दैट डजंट रिक्वायर एनी ऑफ योर डिग्री और समथिंग. बट हाँ, बोर्ड सर्टिफिकेशन में उनको बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं. Working in a tertiary care hospital as trainee pharmacist in IV dilution and oncology preparation. What certification do you suggest me to pursue my career in Middle East with that? Like you're already into IV dilution and oncology preparations, right? So, beta, I would suggest that you would go for the sterile preparations, compounding preparations, oncology. तीनों fields आपके पास इसमें मौजूद हैं. आप तीनों में सर्टिफिकेशन करके और आप मिडिल ईस्ट की तरफ ऑब्वियसली मूव कर सकते हैं. या अगर आप बोर्ड सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आप अभी भी कर सकती हैं. आप ट्रेनिंग है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम, सो यू कैन गो फॉर दोस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर तो आपकी ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. एएसएचपी वेबसाइट पर अप्लाई करना है जी, मैंने अभी पूरा बताया. आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना है. ठीक है, आप जब रजिस्टर होंगे वहां पर तो आपको एक्सेसिबल होंगी वहां की सारी चीजें. और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जाके एएसएचपी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में जाना है तो आपको सारे ऑप्शंस पता चल जाएंगे. या अगर आप बोर्ड सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी पता चल जाएगा. ठीक है. So I think so, ma'am. We are done with the questions. जितने questions Thank थे हमने you. कर लिए and keeping in the time view, आपको भी कहीं जाना था and thank you so much for such detailed presentation, ma'am. And Thank you. also आपकी कमिटमेंट्स थी बट फिर भी आपने टाइम निकाला पीएमपी के लिए. We are really grateful for that and Thank we you are so happy much. to have you on board.
एंड Thank फॉर द you. स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास कल सर्वे आ जाएगा पीएमपी की वेबसाइट पे, एंड उस सर्वे के बाद में आप सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं टुमारो आफ्टर 6 PM. So thank you ठीक है so जी. much for all the participants as well for joining, and thank you so much again, Ma'am Afsa, for joining us and for such Thank you. very good presentation. Thank